Dear student, welcome to Fishery Classes by APPCS Academy. You can find the WhatsApp number over here. This is our third lecture. So, in the third lecture, what we'll be talking about? We'll be talking about fish breeding. Okay. So, when we say about fish breeding, we will be talking about the fishes which are majorly involved in fishery sector. Okay. So, India is also known as carp capital of the world. Okay. So what are these carps? Rehu, Katla, Mrigal. Okay, these are desi carp. Then you have hybrid one. Those are silver carp, grass carp. Okay. And there is also a Chinese carp. Okay. So why they are important and why the breeding is important? They are important because of commercial importance. Now, why the breeding is important? Breeding is important because it is to be cultivated. So, which season is most suitable for the breeding of these carp? If you see in natural environment, these carp prefer fast flowing river. Fast flowing river flow in the river. Can you tell me what could be the possible reason for the fast flowing river to be the most suitable ground for breeding to take place? देखो, for survival of the fingerlings or the fish fry, which is what is most suitable? The most suitable thing for the survival of fingerlings and the fish fry should be that it should be away from their predator. Okay. So natural predators क्या होंगे फिश फ्राई के? Frogs, larger fishes, okay, competing species, okay, snakes. In fact, there can be other reptiles. Okay. So, in order to ensure that these carp survive, the next generation survive, what is much needed? Much needed is the fast flowing river. Fast flowing river कब होगा? During rainy season. Okay. The volume of water in the river is maximum during the rainy season. ठीक है? This you understood? Okay. What is the problem associated with the fingerling from natural breeding? Natural breeding can't produce at a commercial scale. आपको बेचना है ना, फिशरीज आप क्यों कल्टीवेट कर रहे हो? क्योंकि यू हैव टू प्रोवाइड पीपल विथ फूड. Fish is also about nutrition. India is suffering from what? Hidden hunger. So what nutrition fishes are providing? Amino acids. Amino acids are the building block for protein. ठीक है? Omega 3 fatty acids. Omega 3 also act as antioxidants. So those who consume fish without using much oil, there is higher chances of them to live a longer life. So fish consumption is also attached with longevity. So किस fish को सबसे ज्यादा किस सोसाइटी में सबसे ज्यादा एज होता है लोगों का? दे हैव हाई लाइफ स्पैन. दिस इज जापानीज सोसाइटी. ठीक है. नाउ वी कम टू द नीड फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग. इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. ठीक है. देखो, इफ देर इज नेचुरल ब्रीडिंग गोइंग ऑन, द प्रॉब्लम इज दैट there will not be much consistency. Why?
because the fish may breed with some related types of carp. For example, कतला may breed with मृगाल. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ फ्राई विल बी नॉट गुड. ठीक है, सो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इंश्योर ग्रेटर कंसिस्टेंसी. ठीक है, एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज ऑल्सो ब्रीडिंग ऑन डिमांड. ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो लीड्स टू stock improvement. How the stock improvement is done? For example, we have 100 of katla. Okay, इसमें से क्या होता है, we will select those pair, those who have grown and shown higher survival rate. Okay, higher range of temperature variation they are able to survive. Their growth rate is high, so we'll separate them, and then we will try to breed or interbreed them. So next generation will get the gametes which are dominant. Higher chance, dominant. किस किस को गैमेट्स नहीं समझ में आता है मैं बता दूंगा. जीन थ्योरी से रिलेटेड है गैमेट्स. If any one of you don't know what gamete is, I will teach for 5 minutes about gamete as well. Just answer that in the chat section. ठीक है, next. I will come to gametes. अगर किसी को नहीं आता है, चलो आपको बता देता हूं. मान लो एक फिश है. ठीक है, एक फिश है. ठीक है, ठीक है, एक फिश है, ये मेल है. ठीक है, एक फिश है, ये फीमेल है. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर बिग, both of them are for example white in color. ठीक है, big and white in color is one of the thing which is much in demand for the milk carp. Where on earth you will find milk carp? Coral islands. ठीक है, in India milk carp is known as mean, पाल मीन. मीन का मतलब तो फिश ही होता है. ठीक है, इट इज नोन एज पाल मीन. ठीक है, तो माँ भी बिग एंड व्हाइट है. ठीक है, सो अब बिग एंड व्हाइट को हम लोग पुनेट क्रॉस में देखेंगे. ठीक है, बिग एंड व्हाइट. ठीक है, बिग एंड व्हाइट. ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरब्रीड किए. ठीक है, ठीक है, इंटरब्रीड किए. ठीक है, बी और डब्ल्यू से हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग बी और डब्ल्यू से बता रहे हैं जो साइज है उसका जो जीन है बी है, जो कलर है उसका जो जीन है वो व्हाइट है. ठीक है, अगर बिग नहीं होके स्मॉल होता तो ये होता. ठीक है, अगर उसका कलर ब्राइट व्हाइट ना होके लेस होता तो स्मॉल से बताते. तो स्मॉल वाला उसको कहते हैं रिसेसिव, रिसेसिव जीन. ठीक है, और जो बिग होता है बोल्ड होता है उसको कहते हैं डोमिनेंट जीन. जेनेटिक्स है, आपके फिशरीज में नहीं आएगा पर बस ठीक है आप समझ लो. ठीक है, क्रॉस हुआ. ठीक है, बी बी क्रॉस हुआ. ठीक है, ये भी बी डब्ल्यू, ये भी बी डब्ल्यू. ठीक है, ये भी बी डब्ल्यू, ये भी बी डब्ल्यू. ठीक है, तो क्रॉसिंग से जो आपका नेक्स्ट ब्रीड डेवलप होगा हायर चांस है उसका भी बिग एंड मिल्की व्हाइट हो. ठीक है, तो इसको कहते हैं गैमेट्स. जो पेयर्स हम लेते हैं ऑफ जीन, ठीक है, उसको गैमेट्स कहते हैं. वन इज टेकन फ्रॉम फादर एंड वन इज टेकन फ्रॉम मदर. ठीक है, चलिए
थोड़ा सा अगर आप लोग को जीन जानना है तो मैं जीन थ्योरी की क्लासेस का वीडियो दे दूंगा। इसमें मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बताना था कॉमन सेंस के फॉर्म में। ठीक है। अब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट व्हाट, अबाउट द फिशेस। ठीक है। तो फिशेस में क्या होता है ना, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ टेलियोस्ट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो टेलियोस्ट है ये किसको कहते हैं, ये उन सारे फिश को कहते हैं दोज हु हैव फिन एंड रे। ठीक है, कार्प्स, उन्हीं का एक अलग नाम है। ठीक है, कार्प्स। ठीक है। तो दे रिप्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यस, होता है। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यू विल नॉट नीड मेल फॉर इट। ठीक है। तो वो कैसे होता है, विदाउट द मेल द एम्ब्रॉयो डेवलप्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, which the female is able to reproduce without the involvement of male। तो उसको क्या कहते हैं, पार्थोजेनेसिस। याद रख लेना, पार्थोजेनेसिस जेनेसिस में मेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, नो, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप कर जाता है आपका एम्ब्रॉयज में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पार्थोजेनेसिस। तो उस पार्थोजेनेसिस में बस आपको बताना है कि पार्थोजेनेसिस में क्या होता है, मेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रॉयज। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। अब नंबर ऑफ ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी देखो। ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है ना, एनुअल होता है। ठीक है, वंस इन ए लाइफ टाइम होता है, और एल्स इट इज इन 3 and 4 months। 3-4 महीने का साइकिल होता है। ठीक है। तो विच वन विल बी गुड फॉर फिशरी इंडस्ट्री? डेफिनेटली नॉट द सिंक्रोनस ब्रीडिंग बट ए सिंक्रोनस ब्रीडिंग। ठीक है। तो एनुअली कौन रिप्रोड्यूस करता है, एनुअली रिप्रोड्यूस करते हैं आपके सॉल्मन्स, वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, वंस इन देयर लाइफ टाइम। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट सिंक्रोनस ब्रीडिंग के समय होता क्या है। देखो, एक फिश है, दिस इज द फिश। ठीक है, फिश है। ठीक है, इसके बॉडी में ओवरी है। ओवरी में एक सेल होता है। ठीक है, एक एग होता है, ओवम। ठीक है, ये एग बनता है आगे जाके oocytes, OOCYTS। ठीक है, विच अंडरगो, विच अंडरगो म्योटिक डिवीजन। ठीक है, ovary is an organ in which ovum is there. Ovum once fertilized, it it's go it is called oocytes, OOCYTS, and which goes meiotic division, MEOTIC, meiotic division। स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैंने, MEO। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज meiotic division। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, काइंडली मेक दिस डायग्राम। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन दैट क्रिएट्स रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, दिस रिप्रोडक्टिव सेल will have half of the number of chromosomes from mother and half from father। As human beings we have 23 pairs
of chromosome. So half of the chromosome we get from our mother and half of the chromosome we get from our father. ठीक है, ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको नेक्स्ट सेशन में मुझे बताना होगा. तो सिंक्रोनस में क्या होता है? सिंक्रोनस में ये होता है दे ब्रीड वंस इन ए ईयर और वंस इन ए लाइफ टाइम. ठीक है, ये इसलिए बताया. देखो अब क्या होता है ना कि आपके पास सर्टेन फिश होंगे, ठीक है, जिनमें आपका ओवम जो होता है वो सारे ओवम सेम स्टेज पर होगा. ये फिश है, फिश है, इसके बॉडी में सारे ओवम अगर सेम स्टेज पे हैं तो क्या है? सिंक्रोनस है. सेम स्टेज पे है तो एक ही साथ सारे अंडे निकलेंगे ना. ठीक है, अगर डिफरेंट स्टेज पे इसके ओवम्स हैं तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे होंगे. तो इसका मतलब साइकिल शॉर्ट है. ठीक है, डिफरेंट स्टेज पे है तो चलो ये स्मॉल वाला ये डेवलप्ड वाला निकल गया, दूसरा वाला बाद में आएगा, उसके पीछे वाला बाद में आएगा. ठीक है, तो जो भी सिंक्रोनस होते हैं आपके फिशेस, उनमें सारे ओवम सेम स्टेज पे होते हैं. दे आर नॉट एट डिफरेंट स्टेज. दैट इज द रीजन आई वाज टॉकिंग अबाउट ओसाइट्स. ठीक है, और ओसाइट्स को समझने के लिए मैंने मेटोसिस के बारे में बताया. ठीक है, मीटियो मीटियो डिवीजन. चलो ठीक है, नेक्स्ट अब है ग्रुप सिंक्रोनस. ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका वही जो आपको सिंक्रोनस ब्रीडिंग के बारे में बताया था उसी का एक्सटेंशन है. इट ओव्यूलेट्स वंस इन ए सीजन. ठीक है, और अंडरगो मल्टीपल ओव्यूलेशन विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन द सेम सीजन. ठीक है, एंड इट जनरली हैपेंस, ठीक है, विद द मोस्ट स्पीसीज ऑफ फिश. ठीक है, इसमें साथ में सारे ओवम निकलते हैं, सेम स्टेज पे है, साथ में सारे निकलेंगे. 2-3 दिन आगे पीछे होगा या 2-3 वीक आगे पीछे होगा. ठीक है, साथ में होता है, ग्रुप में निकलता है. ठीक है, व्हाट इज मियोटिक डिवीजन? ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है, मियोटिक डिवीजन क्या होता है? आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवम है. ओवम, ओवम इज एन एग. ठीक है, वंस इट इज फर्टिलाइज्ड, oocytes. ठीक है, इट इट गो फॉर सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होगा? हाफ द नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरी है, ओवरी के अंदर ओसाइट्स है जो सेल डिवीजन इनिशिएट करेगा. फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, इसमें हाफ ऑफ द गैमेट्स होंगे, मतलब माँ वाला जो गैमेट्स है वो आएगा. जब स्पर्म फ्रॉम फादर विल रीच, ठीक है, इट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो अदर हाफ ऑफ द गैमेट्स विल मीट फ्रॉम हियर. ठीक है, सो दिस इज नोन एज म्यूटिक डिवीजन. ठीक है, दैट्स इट. ये आपका बायोलॉजी का कंसेप्ट है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली, पर मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं. ठीक है, ए सिंक्रोनस में क्या होता है? ए सिंक्रोनस में होता है दे कैन ओव्यूलेट. ठीक है, ओवम उसमें रेगुलर बेसिस पे बन सकता है. सम टाइम्स एवरी डे इज ऑल्सो पॉसिबल, समटाइम्स
विद इन 5-6 वीक्स, विद इन 5-7 मंथ्स, ठीक है, पर विद इन ए ईयर दे ओव्यूलेट ऑन ए रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि एक साल में एक ही होगा या लाइफ टाइम में एक ही होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेब्रा फिश, ठीक है। जेब्रा फिश में क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स है, ठीक है। जेब्रा फिश एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस रिप्रोडक्शन विच इज ऑन एन एवरीडे बेसिस, ठीक है। अब आप देखिए साइज एंड एज ऑफ मैच्यूरेशन, कॉमन कार्प विद इन 1 ईयर, ग्रास कार्प विद इन 2 ईयर्स, सिल्वर कार्प विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। राहु, कतला एंड मृगाल, दे आर 1 ईयर्स ईच। राहु एंड मृगाल, कतला 2+ ईयर है, ठीक है, कतला इज 2+ईयर्स। दैट मीन्स द मॉनिटरी बेनिफिट एसोसिएटेड विथ कतला में आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसको मैच्योर होने में 2+ ईयर रहेगा, ठीक है। इसलिए जब कतला का बड़ा वैरायटी आता है, बड़ा आता है, तो आप देखिएगा इसका दाम ज्यादा होता है कंपेयर टू रोहू, ठीक है। इफ यू गो टू द फिश मार्केट इन गुवाहाटी एंड देयर इज बिग साइज ऑफ कातला ओवर देयर, इट्स कॉस्ट विल बी हाई, ठीक है, क्यों, मैच्योरेशन टाइम ज्यादा है, ठीक है। On what features does this maturation depend? They depends upon the geographical condition, not only geography but also ecological condition, ठीक है। इवन ब्रीडिंग टाइम्स, ओके, ब्रीडिंग टाइम मैंने आपको क्या बोला है कि जनरल कार्प का ब्रीडिंग टाइम क्या होता है, या मोस्ट ऑफ द फिशेस का क्या होता है, रेनी मंथ्स, ठीक है। बट even rainy month is dependent on local arrival of monsoon. For example, in Assam breeding months start earlier than Odisha, ठीक है, उड़ीसा से पहले आसाम में ब्रीडिंग होना शुरू हो जाता है, एंड इवन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का ब्रीडिंग मंथ साथ में स्टार्ट होता है। व्हाई? बिकॉज अराइवल ऑफ मॉनसून इज बिट अर्लियर इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कंपेयर टू उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। व्हाई? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो आपका बे ऑफ बंगाल से डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट को मिल जाता है, ठीक है। वाई? देखो, ये इंडिया है, इंडिया में मॉनसून दो तरह से आता है, एक है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। इसको कहते हैं साउथ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मॉनसूनल विंड निकलता है, इट रन्स पैरेलल टू द इंडियन कोस्ट एंड टर्न्स above 23.5 towards right, ठीक है। अंडर दो फैक्टर, पहला फैक्टर है आपका कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। दूसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ अराकन योमा, प्रेजेंस ऑफ अराकन योमा माउंटेन्स, ठीक है। दे फोर्स देम टू गो टूवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। यहां तक तो राइट जा रहा था, लेकिन यहां पर जाकर के फंस जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अराकन योमा एंड द हिमालयाज। इवन इन हिमालयाज दे एंटर गारो खासी एंड जैंतिया, एंड गारो खासी एंड जैंतिया, गारो जैंतिया एंड खासी, इसका दिक्कत क्या होता है ना, ये फनल शेप्ड हो जाता है और इसमें जाकर के आपका विंड फंस जाता है, और इसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेघालय में दिखता है, ठीक है। दैट्स द रीजन आपका जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उससे मॉनसून अर्ली पहुंचता है आपका नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर टू उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, बिकॉज दे आर रनिंग पैरेलल टू इट ओवर देयर, ठीक है। अब आप देखो टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सीजन, ठीक है। तो 5 कल्टिवेटेबल कार्प है, ठीक है। कौन सा है? कातला, रेहू, मृगाल, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन इज कंट्रोल्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून सीजन, ठीक है। इन इंडिया एंड चाइना दे नेचुरली ब्रीड इन फ्लडेड रिवर ड्यूरिंग मॉनसून, ठीक है। दैट्स द रीजन एमंग इंडियंस, ठीक है,
ईटिंग ऑफ फिश ड्यूरिंग रेनी सीजन इज बैंड। क्यों? अगर फिश को रेनी सीजन में खाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं ना पैदा हो पाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन अगर पैदा होगा तो हमें फिश की कभी भी कमी नहीं होगी। दैट्स द रीजन ड्यूरिंग May, June, July, August, if you go for fishes, what you will find? You will find eggs inside them, especially carp, कतला, राहू, मृगाल, सिल्वर, ग्रास्प। ठीक है, इसमें आपको हाई चांसेस है एग्स होने के, इसीलिए अवॉइड किया जाता है रेनी सीजन में फिश को। वाई? नेक्स्ट जनरेशन शुड नॉट बी जियोपर्डाइज्ड, उनको खाने के लिए उनको पहले निकलने दो। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, कार्प्स का क्या होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन? कॉमन का ये इंडियन कार्प्स हैं, राहु, कतला एंड मृगाल। ठीक है, उसके बाद है कॉमन कार्प, क्योंकि ये हाइब्रिड हो गया है, हाइब्रिड, तो ये होता है आपका दो सीजन में, फरवरी एंड मार्च, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, ग्रास एंड सिल्वर, अप्रैल टू सितंबर। कैटफिश ड्यूरिंग मॉनसून। व्हाट आर कैटफिश? कैटफिश डोंट हैव स्केल्स। ठीक है, दूसरा दे आर बॉटम ड्वेलर्स। ठीक है, तीसरा दे हैव बोनी हेड। ठीक है, देर इज हाई चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द कैटफिश इवन इन क्या कहते हैं आउटसाइड वाटर। दैट्स द रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज लाइव फिश, जिंदा मछली। दैट मीन्स लाइव फिश। क्यों? बिकॉज दे कैन बी सोल्ड लाइव। इफ यू गो टू द मार्केट यू कैन फाइंड कैटफिश। व्हाट आर द लाइव कैटफिश अवेलेबल? मांगुर, सिंघी. There is also an exotic variety of catfish which is banned, African catfish. Why it is banned? Because it is exotic variety. Since natural predator is missing, so it is ending up the competition. All the competing breeds are removed, which is going to be very much challenging for the ecological balance. ठीक है, दूसरा catfish टेंगरा। ठीक है, कैटफिश में और एक स्पेशल फीचर्स होता है, उसको कहते हैं बर्नाकल्स। जो बिल्ली होती है ना, उसको भी तो मूछें होती है ना, उसी को कहते हैं बर्नाकल्स। दैट्स द रीजन दिस फिश आर नोन एज कैटफिश। ठीक है, अब देखो स्पाउनिंग में एक्चुअली होता क्या है। देखो, द एग इज रिलीज्ड बाय द फिश। ठीक है, दूसरा द मेल फिश वेट्स टू स्प्रेड इट्स स्पर्म ओवर द एग एंड गेट इट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, fishes have to be very careful in mate selection. Why? Because the young ones will take a pair, one of the gametes from the father. So father कैसा होना चाहिए? Father should be strong. Father should be strong. It should display a sense of good defense. क्योंकि until and unless these eggs are hatched, it is the duty of father also to guard. ठीक है, it should display the skill of nest building. ठीक है, he should be ready to defend the fertilized egg against the enemy. ठीक है, or he should always be there for the brood guarding. ठीक है, if we see in our human also, what you find that females are more attracted towards taller guys. Why? Because it is part of survival instinct. Before we became civilized, females were and males were in jungle. In jungle, what is going to safeguard the next generation? It is the strength of parents, male, right? And male, if he is very strong, he will be able to hunt big animals and provide for food. Similarly, in the jungle or in the wild, the same process is still existing. Now, why female are choosing rich guy? Because after getting pregnant and raising the child, female does not have time for economic activity. So the raising of kid requires good amount of time, good amount of investment,
that can only be done when the female is free from economic activity for next 10 to 15 years. That's the reason female prefer richer guys. ठीक है, it is just embedded in their gene. You should not blame social media that they are going to marry someone who is rich. No, it is embedded in their gene. It is biologically over there. ठीक है. Now, type of spawning. ठीक है, देखो, ओपन सबस्ट्रेट स्पॉनर. ठीक है, ओपन सबस्ट्रेट स्पॉनर का मतलब क्या होता है, जो खुले में अपने अंडे डाल देते हैं. ठीक है, तो उसका कहा गया है पेलाजिक स्पॉनर एंड बेंथिक स्पॉनर. आपको याद रखना आसान होगा, बेंथिक का मतलब होता है बॉटम. ठीक है, तो बॉटम में जो अपना एग फैलाएगा उसको क्या कहेंगे, बेंथिक स्पॉनर. तो सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूं, कैटफिश. ठीक है, ये बॉटम में रहता है, तो क्या ये बॉटम में स्पॉनिंग करता है? नहीं, ये बॉटम में स्पॉनिंग नहीं करता है. तो कौन करता है? फ्लैट फिश. फ्लैट फिश आर नोन एज फ्लैट फिश. व्हाई? बिकॉज they are lying on the benthic region or the ground of the water bodies, and they are flat, and their color is also matching up with the sea floor, or river floor. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इंडियन टंग फ्लैटफिश. दूसरा है मालाबार फ्लैटफिश. ठीक है, वेयर इज मालाबार? केरला. ठीक है, फ्लैट फिश इंडिया में सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. ठीक है, यहां तक समझ में आया? व्हाट इज पेलाजिक स्पॉनर? ठीक है, पेलाजिक स्पॉनर जो होता है वो ऊपर लेवल या वाटर कॉलम में अपना डाल देता है एग्स. ठीक है, दूसरा है दे स्पाउन देयर एग एंड स्पर्म इन ओपन वाटर. ओपन वाटर. ठीक है, इट कैन बोथ फॉर द ओशियनिक, रिवर, रिवर मतलब फ्रेश वाटर फिश, दोनों के लिए है. ठीक है, इसमें होता क्या है, जो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पेलाजिक स्पॉनर. ठीक है, ये ओपन में डाल दिया है, तो ओपन में इसका कब एग विल बी सेफ? व्हेन द रिवर इज फास्ट फ्लोइंग. ठीक है, फास्ट फ्लोइंग रिवर है तो सेफ होगा. ठीक है, तो इसका जो एग होता है और जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो ओपन में डाला हुआ है, फास्ट फ्लोइंग रिवर में है, तो इसमें ऑयल होना चाहिए ज्यादा. ठीक है, इट शुड बी ऑयली. दूसरा क्या होता है, इट शुड ऑल्सो हैव हाई वाटर कंटेंट. हाई वाटर कंटेंट है तभी तो डेंसिटी मैच करेगा, और जब डेंसिटी मैच करेगा तो फ्री फ्लो करेगा. ठीक है, ठीक है. दूसरा, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं. देखो, ये पेलाजिक स्पॉनर है, तो जरूरी नहीं जो आपका बॉटम में जो फिश है ना, वो ऊपर आके स्पॉनिंग नहीं करे. ठीक है, आपको मैंने कैटफिश का एग्जांपल बताया था, उससे बेटर एग्जांपल है आपका पैरट फिश. ठीक है, ये ऊपर में आके स्पॉनिंग करता है. वेयर डज पैरट फिश इज फाउंड? कोरल्स. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू नो कोरल्स. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, ब्रूड हाइडर. ठीक है, एक तो आपको मैंने पहले बता दिया कि स्पॉनिंग के अनुसार वी कैन क्लासीफाई ऑन टू ग्राउंड्स. ठीक है, एक जो ऊपर में करते हैं पेलाजिक, और एक जो नीचे में करते हैं बेंथिक, बॉटम में. ठीक है, दूसरा है ब्रूड हाइडर. ठीक है, देखो, ब्रूड हाइडर में क्या होता है ना,
ब्रूड जो होता है ना आपका, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, उसको हाइड कर देता है। फर्टिलाइज्ड एग्स आर हिडन। ठीक है। स्पॉनिंग अलग चीज है, स्पॉनिंग में तो एग रिलीज हुआ, ठीक है, और एग फर्टिलाइज हो रहा है, या तो बॉटम में हो रहा है या तो पेलाजिक में हो रहा है। ठीक है, बॉटम और द टॉप, बेंथिक और पेलाजिक। ब्रूड हाइटर में क्या होता है, अब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें जो एग को छुपा लेता है उसको कहते हैं ब्रूड हाइडर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो अब देखो होता है क्या है ना, मोस्ट ऑफ द ब्रूड हाइडर आर बेंथिक स्पॉनर, मोस्ट, नॉट ऑल। ठीक है। अब ब्रूड हाइडर का भी दो तरह का बिहेवियर है। ठीक है, देखो दो तरह का बिहेवियर क्या है। ब्रूड हाइडर का क्या है, अपने ब्रूड को छुपा लेना। तो एक होता है एक्सटर्नल बियरर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइव बियरर्स आर द फिश दैट रिटेन देयर एग इनसाइड द बॉडी एंड गिव बर्थ टू लाइव फ्री स्विमिंग यंग्स। ठीक है, देखो ये तो एक्सटर्नल, ये तो गलत यहाँ पे आ गया। देखो एक होता है माउथ ब्रूडर। ठीक है, माउथ ब्रूडर भी दो तरह के होते हैं, ओवियोफाइल्स एंड लार्वोफाइल्स। ठीक है, देखो माउथ ब्रूडर का, देखो ये आया फिश। ठीक है, इसने एग स्पाउन किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एग स्पाउन किया और दूसरा आया मेल फिश। ठीक है, इसने स्पर्म डाला। ठीक है, ये फर्टिलाइज हुआ। ठीक है, जब ये फर्टिलाइज हो गया तो ये अपने मुंह में वापस डाल लिया सारे बच्चों को। ठीक है, अब जो सारे बच्चे इसके मुंह में आए, ठीक है, दे हैच्ड इनसाइड, दे हैच्ड इनसाइड द माउथ। ठीक है, once they hatched inside the mouth, they will remain there until less they become big enough to survive independently. ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आपका लार्वोफाइल्स। लार्वोफाइल्स में क्या हुआ, इसने, मछली ने स्पॉनिंग की एक पिट में, पिट मतलब गड्ढा। ठीक है, स्पॉनिंग की, स्पॉनिंग की तो इसके सारे एग्स इसमें डाले। ठीक है, स्पर्म आया, मेल आया, स्पर्म डाला। स्पर्म डालने के बाद फर्टिलाइज हुआ और लार्वा बना। ठीक है, लार्वा बनने के बाद फिश उसे अपने बॉडी के अंदर लेगी। ठीक है, मतलब माउथ में लेगी, उसके माउथ में लेगी। ठीक है, लार्वा बनने के बाद, और जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उसको रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये है ओवियोफाइल्स एंड लार्वोफाइल्स, ये माउथ ब्रूडर होते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नली एग को निकाला और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नली फर्टिलाइज होने के बाद अगर लार्वा या फर्टिलाइज्ड एग को मुंह में रखा तो उसको कहेंगे माउथ ब्रूडर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट। ठीक है, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू ओवियोफाइल्स। ठीक है, ओवियोफाइल्स मतलब एग, फाइल का मतलब है लविंग। ठीक है, फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, तो एग लविंग। ठीक है,
तो पहले एक को पिट में डाला, फिर सक कर लिया माउथ ऑफ द फीमेल, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एग हैज्ड इन द माउथ्स ऑफ मदर, ठीक है। देयर द फ्राई विल रिमेन फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एग स्पॉट, ठीक है। अब एग स्पॉट क्या होता है? दीज एग स्पॉट्स आर, इसको जानने दो। ये एग स्पॉट क्या होता है ना, कि जो मेल होता है, ठीक है, उसके जो एक्सक्रीटा जहां से निकलता है, एनल, वहां पे एक फिन होता है, ठीक है। और जब फीमेल एक्साइटेड होती है, सी ट्राई टू पिक इट, ठीक है, फ्रॉम हर माउथ, ठीक है। एंड दीज sperms come out of it and fertilizes the eggs which is also present in the mouth of mother, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होता है, दूसरा पिट में डालते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। लार्वोफाइल, ठीक है, लार्वा के फॉर्म में आता है और उसको गार्ड करती है, मेल भी गार्ड करता है, फीमेल भी गार्ड करती है। आफ्टर, जब लार्वा हो जाता है, फीमेल टेक्स इट इनटू माउथ, ठीक है, एंड रिलीजेस देम व्हेन दे स्टार्ट टू फेंड फॉर देमसेल्फ, ठीक है। दैट टाइम ऑल्सो अलोंग विद द फीमेल द मेल इज देयर टू गार्ड, ठीक है। इंटरनल बियरर, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे? इंटरनल बियरर्स आर which retain the eggs internally and give birth to live free swimming young ones, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिंपल सा बात होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी नहीं होता है। सिंपल सा बात है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट आउटसाइड द बॉडी, इट इज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। कैसे? सेम एग्जाम्पल दैट एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ठीक है। ब्लू व्हेल, उसमें भी यही होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वो अटैच्ड हो जाता है बॉडी से, और उसके बाद एक प्लेजेंटा डेवलप होता है, ठीक है। प्लेजेंटा मॉम से बच्चे को कनेक्ट करता है, एंड दिस प्लेजेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम मॉम टू किड, ठीक है। दिस इज नोन एज इंटरनल बियरर, ठीक है। एक्सटर्नल बियरर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, तो उसमें क्या होता है? दो तरीका उसमें होता है, एक माउथ में एक फर्टिलाइज्ड एग को डायरेक्ट डाल देते हैं, दूसरा होता है लार्वा फॉर्मेशन होने देते हैं, उसके बाद माउथ में रखते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? इंटरनल बियरर, fertilization happens inside the body and the same process is followed as we human beings have, placenta is formed, ठीक है, and that provides nutrition, example blue whales, ठीक है। देखो, अब टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ स्पॉनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट शुड बी द टाइम? मॉनसूनल। व्हाई? फास्ट फ्लोइंग रिवर्स will ensure less predators, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी हाई, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द प्रीडेटर्स एंड द प्रे विल बी बिग, ठीक है। दूसरा, इट अवॉइड्स कंपटीशन फॉर स्पॉनिंग हैबिटेट, ठीक है। तीसरा क्या होता है? देयर शुड बी मैक्सिमम एक्सेस टू फूड, ठीक है। इसीलिए आप फ्लड के समय देखोगे मछलियों की तादाद बढ़ जाती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। एंड जब फ्लड रिसीड होता है तो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। व्हाई माइग्रेटरी बर्ड्स कम? बिकॉज देयर आर गुड अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड। अगर माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं उस ऑफस्प्रिंग को खाएगी तो इसका एक्सेस पॉपुलेशन हो जाएगा, और इसका एक्सेस पॉपुलेशन को रोकने के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, बिकॉज देयर इज विंटर इन साइबेरिया। व्हेन माइग्रेटरी बर्ड्स कम दे कंज्यूम द फिशेज दोज हु गिव बर्थ वंस इन ए लाइफ टाइम, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, और उनसे उनको एमिनो एसिड मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो व्हेन दीज बर्ड्स फ्लाई बैक दे आर एबल टू प्रोड्यूस, सॉरी,
these birds are able to produce eggs over here. यहीं पे प्रोड्यूस करते हैं. जब एग्स होता है तो यंग वंस होते हैं. इस यंग वंस को भी इसी फिश को खिलाया जाता है. एंड दीज यंग वंस आर एबल टू ग्रो. एंड वंस द विंटर सीजन इज ओवर, दीज यंग वंस फ्लाई बैक टू Siberia. Now you understand how beautiful nature has decided and designed everything. So you have to be very logical in understanding your fishery. बहुत easy है fishery. Selection पक्का है. Syllabus बहुत छोटा है. ठीक है. Minimize access to offspring by the predators. ठीक है. So timing and location is important. अब देखो. How many of you are from Arunachal? Almost all of you. ठीक है. तो आप लोग का जो रिवर होता है, ठीक है, पोमा रिवर, उसमें पिकनिक मनाने जाते होंगे आप लोग. ठीक है. तो आप पोमा रिवर में जाओ तो इसका वॉल्यूम कब ज्यादा रहेगा? ड्यूरिंग रेनी सीजन. ठीक है. तो अभी जैसे विंटर सीजन खत्म होगा तो आप देखोगे कि सर्टेन पीपल और द लोकल दोज हु ओन दोज एरिया नियर द रिवर, दे विल क्रिएट ए हाउस मेड अप ऑफ स्टोन. ठीक है. So these stones will become the shelter grounds for the fishes during the rainy season and they will reproduce inside over here. ठीक है. So इस तरह से इसको डिजाइन ही करते हैं कि फिशेस भी इसी में आकर के अपने बच्चों के साथ रहती है. दैट्स द रीजन आफ्टर रेनी सीजन दे विल गो एंड ट्राई टू कलेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द फिशेस फ्रॉम हियर. ठीक है. यहाँ पे एक शायद बास्केट डाल देगा जिसमें आराम से घुसेगा, बिकॉज देर इज ए फ्री फ्लो ऑफ द रिवर हैपनिंग. ओके. और फिर बाहर निकल नहीं पाएगा, फंस जाएगा. ठीक है. These kind of things you have practically witnessed yourself. Now you can understand why. Because free flow of the river, ground for spawning is selected in such a manner that it is away from the predators. इसीलिए स्टोन्स के नीचे आपको हमेशा छोटा छोटा फिशेस दिखेगा, क्योंकि उसका बर्थ ही वहीं हुआ है. उस एरिया में दे हैव अंडरस्टूड दैट दे आर सेफ. ठीक है. सी, egg size and number are inversely related. If the numbers are high, the egg size will be less. ठीक है. दूसरा है egg number is related to female size within the species. अगर राहू राहू नहीं, रेहू मछली बड़े साइज की है तो उसके कंपेयर में जो छोटी मछली है रेहू ब्रीड की, उसका एग साइज और एग नंबर दोनों कम होगा. ठीक है. एग साइज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ फिश. ठीक है. लार्जर इज द फिश, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जैसे शार्क है. ठीक है. तो उसका एग नंबर क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि ये ज्यादा बच्चा पैदा कर लेगी तो इसको फिर बच्चा पैदा भी तो करने के बाद पालना है ना. इट विल बिकम डिफिकल्ट. वाई? देयर साइज इज हाई, दे विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. दैट इज द रीजन. दिस इज व्हाट इट इज ए रेगुलेटिंग मैकेनिज्म. अगर शार्क ज्यादा बच्चा पैदा करने लगे तो पूरे ओशन विल बिकम ए टफ सिचुएशन फॉर अदर, not only human being but for other species to survive. That's the reason the larger species. देखो, आपको ट्रॉपिक्स लेवल समझना होगा उसके लिए. ट्रॉपिक्स देखो, what is tropics? It is the energy flow, एनर्जी लेवल. ठीक है. देखो, ये आपका ग्रासेस है. ग्रासेस से भी ज्यादा अच्छा एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू नो फाइटोप्लैंक्टन्स? ठीक है. These are the smallest species which can do photosynthesis. ठीक है. फिर है ग्रासेस. ठीक है. तो फाइटोप्लैंक्टन्स और ग्रासेस को कौन खाता है? क्रिल्स. ठीक है. तो फाइटोप्लैंक्टन्स अगर 10,000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक लॉ है कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक ओनली 10% उसका जाता है. तो व्हाट इज द 10%? 1,000 किलो कैलोरीज.
ठीक है. व्हाट इज krill? Krill इज झींगा. ठीक है. सो इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर. These are the primary producers. So when the primary consumer is consumed by smaller fish, the smaller fish are secondary consumer. ठीक है. तो इससे 10,000 किलो कैलोरी है, तो ऊपर कितना एनर्जी गया? 100 किलो कैलोरी. दिस इज कंज्यूम्ड बाय शार्क, द टर्सरी कंज्यूमर. ठीक है. तो इसके पास कितना गया? 10 कैलोरीज. यहाँ 100 का 10%, 10 कैलोरीज. अगर शार्क का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, 10 किलो कैलोरीज, ठीक है, शार्क का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सारी मछलियां खा जाएगी. ठीक है, सारे क्रिल्स खा जाएंगे. ठीक है. तो इसके बाद फिर क्या बचेगा? घास बचेगा और फाइटोप्लैंक्टन्स बचेगा. शार्क के पास क्रिल्स होगा नहीं. तो पॉपुलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इज नेसेसरी फॉर दिस ट्रॉपिक्स लेवल ऑफ एनर्जी टू सस्टेन. ठीक है. दैट्स द रीजन लार्जर इज द फिश, their egg size is large, but sorry, larger is the fish, the number of eggs they are producing will be small. ठीक है. अब देखो, ये तो मैंने बताया कि ऊपर में जो बड़ी फिश रहेगी उसका नंबर लेस रहेगा. ठीक है. ठीक है. अगर एक शार्क है, वो मान लो 10 मीटर की है. ठीक है. दूसरी शार्क जो है वो 25 मीटर की है. ठीक है. तो दोनों के बीच में एग साइज किसका बड़ा होगा? जो 25 मीटर वाली है उसका बड़ा होगा, जो 10 मीटर वाली है उसका छोटा होगा. ठीक है. ठीक है. देखो, देखो, जो स्पॉनर है ना, उसका सर्वाइवरशिप, स्पॉनर क्या है? फिशेस लेइंग एग्स. ठीक है. मेल लेइंग स्पर्म्स. ठीक है. उसका सर्वाइवरशिप डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह का स्पॉनर है. ठीक है. जो बैच स्पॉनर है और जो फ्रैक्शनल स्पॉनर है, तो बैच स्पॉनर क्या है? दे आर डूइंग इट एनुअली. ठीक है. द फ्रैक्शनल स्पॉनर आर डूइंग इट सीजनली. ठीक है. जो आपका सीजनली कर रहा है उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है. ठीक है. अब जब उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है तो उसमें सर्वाइवल रेट कम होना चाहिए. अगर उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाएगा तो उसका पॉपुलेशन विल इंक्रीज डिसप्रोपोर्शनेटली. ठीक है. बैच स्पॉनर एनुअली कर रहा है तो इसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होना चाहिए. एग्जाम्पल इलिश और हिल्सा. वो अलग बात है, इसको प्रीडेटिंग, हम लोग फिशिंग ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वी आर डूइंग ओवर फिशिंग, इसीलिए उसका सर्वाइवल खतरे में है. ठीक है. अब देखिए सर्वाइवल शिप. ठीक है. अगर एग प्रोडक्शन इज लो, ठीक है, तो उसको बचाया जा सकता है आसानी से. ठीक है. अगर एग प्रोडक्शन इज हाई तो उसको बचाया जा सकता है मुश्किल से. ठीक है. ठीक है. दैट इज ओनली इट इज टॉकिंग अबाउट. दूसरा क्या कि मेल जो है ये अर्ली मैच्योर करता है फीमेल से और साइज में स्मॉलर होता है फीमेल से. ठीक है. ठीक है. अगर इसका लाइफ स्पैन छोटा है तो इसका मैच्योरिटी और ग्रोथ क्या होगा? अर्लियर होगा. ठीक है. स्टेबल इन्वायरमेंट अगर है तो रिप्रोडक्शन डिले होगा. वाई? क्योंकि इसका प्रीडेशन ज्यादा नहीं है. जिसका प्रीडेशन ज्यादा होगा नेचुरली दे विल बी रिप्रोड्यूस्ड इन लार्जर नंबर compared to humans who is reproducing more fishes. Why? Humans क्या predator कौन है? मुश्किल से कुछ लोग हैं, कुछ in the wild. Survival of humans are more. ठीक है. We can survive for 100 years.
द फिशेस विल सर्वाइव फॉर 1 ईयर। तो किसका रिप्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए? फिशेस का। वाई? फॉर द पॉपुलेशन टू बी सस्टेन्ड। ह्यूमन बींग इन देयर इंटायर लाइफ टाइम दे कैन हैव एटलीस्ट at max nowadays, because of school fees, not by nature, we are trying to produce how much? Only 1 or 2 kids. But your parents had produced 5, 6, 7 kids. My parents had produced 3, right? My grandparents had produced 10. ठीक है? Why? क्योंकि उस समय सर्वाइवल रेट कम था. पीपल वेर नॉट सर्वाइविंग व्हेन देयर किड्स. टुडे द सर्वाइवल रेट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस. ठीक है? तो फिशेस का भी यही है, जिसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है उसका रिप्रोडक्शन कम होगा, जिसका सर्वाइवल रेट कम है उसका रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा. ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है? देखो, दे आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ फिश व्हेन दे स्पाउन दे डाई. ठीक है? मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पॉनिंग होता है, तो उसके बाद वो उनका डेथ हो जाता है और उसके डेड बॉडी को ही उनके यंग वन खाते हैं. ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू. रेड साल्मोन्स का नाम सुना है? ये इस्चुरीज से फ्रेश वाटर की तरफ जाता है टू गिव बर्थ. ठीक है? फ्रेश वाटर की तरफ जाता है क्योंकि फ्रेश वाटर में रिवर का फ्लो स्ट्रांग होता है, ज्यादा होता है. ठीक है? देयर आफ्टर स्पाउनिंग दे डाई एंड देयर डेड बॉडीज आर ईटन बाय देयर यंग वंस. एंड ये न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करता है. ठीक है? उसको कहते हैं सेमल पैरिटी. ठीक है? दे रिप्रोड्यूस वंस इन ए लाइफ टाइम, क्योंकि जिंदगी में एक ही बार मरेंगे. सरकारी आदमी थोड़ी है कि रोज मर रहे हैं. ठीक है? या ह्यूमन बींग थोड़ी ना कि रोज मर रहे हैं. ठीक है? इटीरो पैरिटी, दे reproduce repeated times. ठीक है? This allows them to compensate for a bad year. ठीक है? It is more common in unstable environment. ठीक है? That's it. इसमें भी एक सब कैटेगरी है, स्टॉर्जियन. स्टर्जियन. ठीक है? दे डोंट स्पॉन एवरी ईयर. ठीक है? बट दे प्रोड्यूस मोर देन वंस इन देयर लाइफ टाइम. ठीक है? Those who produce once in their lifetime, they are known as semal parity. Those who produce regularly, they are known as heteroparity. ठीक है? ये सारा चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वंस द एडमिशन प्रोसेस हैज टेकन प्लेस. ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉनिंग. देखो, अब जो स्पॉनिंग है ना, एग, उसके लिए कौन सा हैबिटेट उन्होंने चूज किया है जहां पे वो अपना अंडा डालेंगे, उस हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है. तो जो हार्ड स्टोन सरफेस पे अपना अंडा डालेंगे, फॉर एग्जांपल साल्मोन्स, उनको कहते हैं लिथोफाइल्स. लिथोफाइल्स का मतलब क्या होता है? स्टोन्स. लिथोस्फेयर. ठीक है? लिथोस्फेयर्स आर व्हाट? द सरफेस ऑफ अर्थ. तो हार्ड स्टोन सरफेस पे कर रहे हैं लिथोफाइल्स. प्लांट्स को क्या कहते हैं? फाइटो. ठीक है? फाइटोफाइल्स. तो फाइटो के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर जो अपना अंडा डालेंगे उसको कहते हैं फाइटोफाइल्स. एग्जांपल है कॉमन कार्प. ठीक है? उसके बाद है दोज फिश विच डिपॉजिट देयर एग इन सैंडी सरफेस. उसका एग्जांपल है लाउक. उसको क्या कहते हैं? पजामोफाइल्स. ठीक है? सैंड का मतलब क्या होता है? पजामो. ठीक है? फिर फिशेस विच डिपॉजिट एग्स इनसाइड बायवॉल्व. ठीक है? उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्राकोफाइल्स. ठीक है? और फिशेस विच स्पाउन फ्रीली इन कॉमन वाटर, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, पिलागोफाइल्स. ठीक है? आ, सबसे कॉमन एग्जांपल पिलागोफाइल्स का है आपका कॉड. ठीक है? एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन आस्क. What is the question? All clear. I think we should stop over here.
Okay, I have another class at 7. We'll do one thing. Uh, we will cover in our next class. We will cover. मैं बता देता हूँ what are the topics which we'll cover in next class. Mating system. Okay. Then we'll cover gender system. We'll cover types of eggs and mechanism of hatching. ठीक है, इससे साथ ही आपका हैचिंग खत्म हो जाएगा. ठीक है, आपके फिशरीज का जो हैचिंग वाला पोर्शन है इट विल गेट ओवर. ठीक है, इसके एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पेरेंटल केयर एंड स्टेजेस ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ हैचिंग. ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स. ठीक है,